آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ ذکر خدا اور امام احمد رضا، مصنف مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی۔ حصہ 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یاد دہانی اور مشورہ۔ حضرات، ابھی آپ کی نظر سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان جو گزرا کہ ذکر الہی افضل اعمال بلکہ اصل جملہ اعمال صالحہ ہے، یعنی ہر نیک کام کا مقصد و حاصل خلاصہ و نتیجہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مزہ آنے لگے اور اس کی لذت اسے حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا نام اپنی زبان سے ادا کرے یا دوسرے کی زبان سے سنے، یہ نام لے کر یا سن کر اسے خوشی حاصل ہو، دل میں سرور، قلب میں نور پیدا ہو، طبیعت چاہے کہ اور ذکر کروں یا سنوں، اور یہ بات صرف منہ سے کہنا یا قلم سے لکھنے سے حاصل نہیں ہوتی کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت اچھا لگتا ہے۔ ہر شخص خود ہی اپنے دل سے پوچھے، خود ہی سوال کرے اور خود ہی جواب دے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، جب انسان کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بقول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب ہر نیک کام کا مقصد ذکر الہی ہے اور حضرات انبیاء کرام اور اولیاء اعظام بزرگان دین سے محبت و عقیدت رکھنا بھی یقیناً ایک بڑی نیکی اور خالص اسلام ہے، وہ ان کی شان میں نظم منقبتیں پڑھنا ہو یا ان کی نیاز فاتحہ، ان کے عرس، ان کے نام پر لنگر، جلسے اور جلوس، ان کی یاد میں محفلیں اور مجلسوں کا انعقاد، ان کی بارگاہوں، درگاہوں، مزاروں کی حاضری، اس سب کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کے ذریعے مسلمان کو خدا تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کی لذت حاصل ہو جائے، اور جس کو یہ مقصد حاصل نہ ہو، ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ اس کے یہ سب کام راستہ ہے، منزل و مقام نہیں، اور وہ شخص مقصد میں کامیاب نہیں۔ اس موقع پر بھی میں یہی کہوں گا کہ بزرگوں کی محبت کے دعوے دار خود ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور غور کریں، خود ہی سوال کریں اور خود ہی جواب دیں۔ اگر وہ کسی بھول میں ہو تو اس کا تدارک کریں، غلطی پر ہو تو اصلاح کی کوشش کریں۔ میں کسی کے دل کے احوال سے واقف نہیں اور مجھ کو کسی کی نیت پر حملہ کرنے کا اختیار نہیں، اور بدگمانی تو اسلام میں حرام ہے۔ حدیث پاک میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سب سے افضل بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ مشکات باب حفظ اللسان فصل 3 صفحہ 415۔ ایک مرتبہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آئے۔ الملفوظ حصہ 4 صفحہ 72۔ یعنی خدا والے صرف اپنی تعریفیں کروانے یا اپنی منقبتیں پڑھوانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ وہی ہیں جنہیں دیکھ کر یا ان کی صحبت اختیار کرنے سے، ان کی شان میں نظم منقبتیں پڑھنے سے خدا تعالیٰ تک رسائی ہو جائے، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف توصیف، ہر حال میں اس کا شکر، ہر وقت اس کا ذکر، زبان و دل، روح و دماغ کی غذا ہو جائے، اور جو ایسے نہیں وہ خدا والے بھی نہیں۔ آج کل بہت ساری محفل و مجلسوں، خانقاہی جلسوں میں نے دیکھا ہے، اگر کوئی اللہ کا نام لے، اس کا ذکر کرے، اس کی قدرتیں حکمتیں شمار کرائے، اس کی حمد و ستائش بیان کرے، شان الوہیت میں وارد آیتیں قرآنیہ کی تلاوت کر کے اس کے ذکر و شکر، اس کی تحلیل و تمہید، تکبیر و تسبیح کی طرف بلائے، اس کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرے، ان کی نعت پاک پڑھے، تو خاموش تماشائی سے بنے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں اس سے سیری نہیں ہوتی اور لگتا ہے کہ انہیں اس میں کوئی لذت اور دلچسپی نہیں، اور جب خود ان کا یا ان کے بزرگوں پیروں کا ذکر ہوتا ہے، بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کی کرامات بیان کی جاتی ہے، ان کے نعرے لگتے ہیں، تو اچھلتے کودتے اور خوب واہ واہ کرتے اور داد و تحسین سے نوازتے ہیں۔ انہیں اور ان کا یہ حال دیکھ کر مجھ کو قرآن شریف کی یہ آیت یاد آتی ہے، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب
उसके सिवा औरों का जिक्र होता है जब ही वह खुशियां मनाते हैं। पारा 24 रुकू 2। कुरान की इस आयत का तर्जुमा मैंने इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान से ही नकल किया है। अल्लाह ताला के जिक्र पर दिलों का सिमट जाना, उसके अलावा औरों के जिक्र पर खुशियां मनाना, उछलना कूदना, कुरान में उन लोगों की पहचान बताई गई है जिनका आखिरत पर ईमान न हो। तजर्बा भी ऐसा ही हुआ। यह हाल मैंने उन्हीं लोगों का देखा कि जिनको आखिरत, क़यामत, दोज़ख व जन्नत से कोई सरोकार नहीं। पीरी मुरीदी को गिरोहबंदी, दुनियादारी और एक धंधा बना रखा है। आखिरत उनकी फिक्र और सोच से दूर है। उन्हें यह ध्यान ही नहीं कि हमें मरना है, खुदा ताला को मुंह दिखाना है। जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र कराने चले थे, वह खुद अपनी ही मनकबतें और तारीफें सुनने में लग गए। जो यादे इलाही और जिक्र मुस्तफा की लज्जत हासिल करने निकले थे, वह पीरों में उलझ कर रह गए। तसव्वुफ व तरीकत के मुबारक सिलसिलों को गिरोहबंदी बना डाला। जिनका काम मुसलमानों को जोड़ना था, वह अपनी अपनी तरफ तोड़ने में लग गए। जो दिलों को मिलाने के दावेदार थे, वह उनमें जुदाई पैदा करने के जिम्मेदार हो गए। दीनदार तो न रहे, लेकिन दीन के ठेकेदार बहुत हो गए। खुदा वाले तो चले गए, खुदा को भुलाकर अपनी परस्तिश और पूजा पाठ में लगाने वाले कीड़े मकोड़ों की तरह जगह जगह फैल गए। हो सकता है कि वह लोग ये कहने लगे कि हमको अल्लाह ताला के जिक्र से ज्यादा लज्जत बुजुर्गों के जिक्र में इसलिए आती है कि अल्लाह के बारे में सबका इत्तेफाक है, उसको सब मानते हैं, लेकिन बुजुर्गों के जिक्र के कुछ लोग कायल नहीं और वह इससे चिढ़ते हैं, तो यह भी एक नासमझी है। बातिल फिरकों का रद्द व इब्ताल करने के माना यह नहीं कि हम खुद बातिल परस्त हो जाएं। बदमजहबों को सुधारने का मतलब यह नहीं कि हम खुद अपना मजहब बदल ले। रास्ते में एक गड्ढे को पाटने के लिए दूसरा गड्ढा खुद डालना अक्लमंदी नहीं है। दूसरों को राह दिखाने के लिए खुद गुमराह हो जाना समझदारी नहीं है। बुजुर्गों पीरों के जिक्र, उनकी तारीफें व तौसीफ में लगकर अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गाफिल हो जाना, नमाज रोजे से दूर हो जाना मजहब इस्लाम नहीं, मुसलमान का काम नहीं, खुदाई रास्ता नहीं। जो लोग बुजुर्गों के जिक्र से चिढ़ते हैं, उनके रद्द का मतलब यह है कि बुजुर्गों का जिक्र भी किया जाए, उनकी मनकबतें भी पढ़ी जाए। यह मतलब नहीं कि अल्लाह ताला का जिक्र छोड़ दिया जाए और किया भी जाए तो बस एक रस्म अदा की जाए और इसमें लुत्फ व जायका, लज्जत व मजा खत्म कर लिया जाए। शैतान के एक फंदे से निकलकर दूसरे में खुद को फंसा लिया जाए। मैं उसके शर से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ। आमीन। अगर बुजुर्गों का जिक्र इस मंजिल और हद को पहुंच जाए कि इसके जरिए जिक्र खुदा मिटने लगे या उसकी लज्जत खत्म होने लगे, बुजुर्गों का पुकारना या उनसे मदद मांगना इस मंजिल को पहुंच जाए कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने में कमी आने लगे या इसका रिवाज खत्म होने लगे, तो यह खालिस बिदअत सय्या है और गुमराही है। भाइयों, खूब सुन लो और अच्छी तरह जान लो, पार्टी घाटे में है, जमात टोटे में है, तदारुक जरूरी है, कोशिश करना हमारा आपका काम है और तौफीक अल्लाह ताला ही की तरफ से है। ये देखिए, यही इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह एक मकाम पर तहरीर फरमाते हैं, अहले बिदअत का खिलाफ उनकी बिदअत या शियार खास में किया जाए, न यह कि हमारे मजहब के उमूर खैर से जो बात वह इख्तियार करे हम उसे छोड़ते चले जाएं। फतावा रज़विया जिल्द 7 सफ़ा 415। यहाँ यह इबारत नकल करके मैं यह बताना चाहता हूँ, अगर कोई गिरोह या फिरका अल्लाह वालों के नाम से चिढ़ता है, इससे रोकता है, तो अल्लाह ताला का नाम लेता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी चिढ़ में अल्लाह ताला का नाम लेना, उसकी इबादत करना, उससे मदद और दुआ मांगना छोड़ बैठे और सिर्फ बुजुर्गों को पुकारें या उसका नाम लेते रहें, बल्कि मतलब यह है कि हम उनसे ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करें, उसकी हम्द पढ़ें, उसकी पाकी बोले, उससे दुआ मांगे, साथ ही साथ बुजुर्गों की तारीफें और उनकी करामात भी बयान होती रहें। मैंने देखा है कि मजारात पर हाजिरी देकर नयाज व नजर के जरिए बुजुर्गों से मदद मांगने, उनकी बारगाहों में जाकर अपने दुख दर्द सुनाने को उलमाए अहले सुन्नत ने जायज कह दिया, तो नतीजा यह निकला कि बहुत सी जगह लोगों में मस्जिदों में जाकर रो रो कर नमाजें पढ़कर तिलावत करके अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाने और उससे दुआ मांगने का रिवाज मिटता सा जा रहा है और ये तौफीक उठती सी जा रही है। तो यह भी एक चूक हो रही है जिसकी तरफ तवज्जो और गौर की जरूरत है। और मेरा मकसद किसी बातिल फिरके बद मजहब गिरोह की माज़ अल्लाह तायीद करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद तो उलमाए अहले सुन्नत, खासकर आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मानने जानने और चाहने वालों की इस्लाह करना है और उन्हें मशवरा देना है। कुछ लोग कहते हैं कि
बुजुर्गों का जिक्र भी अल्लाह ताला ही का जिक्र है तो ये बात हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों का जिक्र होता रहे और अल्लाह ताला का जिक्र न किया जाए, बल्कि इसका मतलब भी यही है कि बुजुर्गों से वाबस्ता होने से अल्लाह के जिक्र और शुक्र की लज्जत हासिल हो जाए और अल्लाह ताला के जिक्र और उसकी इबादत के साथ साथ हजरत अंबिया किराम व औलिया इज़ाम बुजुर्गाने दीन का नाम भी ले लिया जाया करे, उनकी यादें और यादगारें बाकी रखी जाएं। कुछ पेशावर मुकर्रिरों शायरों को मैंने देखा है कि जहां जिस जलसे में और महफिल में उन्होंने जिस पीर के मुरीदों की तादाद ज्यादा देखी, फिर उन्हें उस पीर की तारीफ व तौसीफ और उसकी शान व मर्तबा फजाइल व करामात के अलावा कुछ याद नहीं आता, और फिर उन्हें न अल्लाह ताला की याद आती है न उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और कहीं मुकर्रिर शायर साहब की खुशकिस्मती से पीर साहब खुद महफिल में तशरीफ फरमा हो, फिर तो पूछिए मत, विलायत का कोई मर्तबा उनसे बचता नहीं, कोई फजल व कमाल उनसे हटता नहीं। ऐसो ही के लिए हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम बहुत ज्यादा तारीफें करने वालों को देखो तो उनके मुंह पर खाक डाल दो। मिशकात सफा 412 बाब हिफ्जुल लिसान। कुछ पीरों और मुकर्रिरों ने आपस में साजगांठ कर रखी है, ये उनके फजाइल और करामात सुनाते हैं और वो उन्हें प्रोग्राम और नजराने खूब दिलाते हैं। पब्लिक नुच रही है, लुट रही है। आजकल जलसों में अल्लाह ताला व रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कम है, तेरी मेरी या एक दूसरे की तारीफें बहुत ज्यादा हैं। यहाँ यह भी बता देना जरूरी है कि आजकल जो करामात बयान की जाती हैं उनमें काफी वह हैं जो गढ़ी हुई हैं और मुरीदों या अहले सिलसिला को खुश करने और खुश रखने के लिए बना ली गई हैं, और जिन्होंने दीन को सिर्फ दुनिया कमाने का धंधा बना लिया हो, उनकी तकरीरों, बयानात व शायरी या सोहबत में खैर नहीं और ये लोग शैतान के गैर नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बोलने में जो कुछ लग्जिशें और खताएं हुई उसे माफ़ फरमाए। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिमीन को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन।